What are we studying? There are two ways of sending request. How many ways of, namely, can you name them for me? Using Get and post. and what are they? They are called as methods. So you can use method equal to get And method equal to post. or, not both, not and or. You can use either of them, not both of them. So if you are using get, which array does PHP give you? For get PHP gives you an array called as, $_get. and for post PHP gives you an array called as $_post. Okay, now the biggest difference, when do I use get, when do I use post? The biggest difference is if your data is sensitive. If your data is Sensitive. like you are sharing your ID password, you are entering your ID password to some website, you are entering your credit card pin. So such data is, you are entering your ID or password, or not ID, you are entering your password. You want that to be sensitive, or you want people to know your password? Sensitive. So passwords are sensitive. Your credit card pins, ATM pins, credit card pin, ATM card pin, what, it is sensitive or not non-sensitive? Sensitive. So if the data is of such type which you want to be secured, then you will use post. Then what will we use? Post. And the data is non-sensitive, like I tell enter two numbers and add them. Now do you want people to know the two numbers? You don't mind, right? Yes. I was searching on Google, I was searching for Amir Khan, so I don't mind people knowing what I'm searching. So that is non-sensitive data, right? So the first difference is, when do I use get, For the non-sensitive data. and when do I use post? First difference is For the sensitive data. okay. This is the first difference. Second difference is, now see, this, after the 10th standard results, the 10th standard board had shared a link, or they had put in the newspaper that we have started the online admission process. Yes or no? Yes, sir. So please log into the website and please fill up the online admission form. So people were just given the website name, like www dot some name, like 11thstandard.com. What were they shared? They were just shared the website name www.11thstandard.com. Now if I log into this, what do I see? I see a home page, but I don't see the admission page which I have to fill. So I have to browse this website, go on, click on this link, then click on that link, and then click on some third link. I have to navigate deep inside, and deep inside I will see a admission.html page. Yes or no? Yes, sir. So I have to go deep inside the website www.11thstandard.com slash something, or you can have slash results slash some keywords are this, grades, and inside that it is having which file, which page? Admission page. So what has the board shared? They have just shared the website name. So the student's headache is there that he has to navigate till this page. Yes or no? Yes, sir. So what will we ask? So if someone has filled the admission form, what do we tell him? Just please share the link of the admission form.
I know the website name. You just share me the link of the admission form. Yes or no? Yes, sir. So what is easier, getting the website name and then navigating the page by self, or getting the entire link and just clicking and opening the page? What is easier? Getting the link. So this link is called as bookmark. This link is called as. Bookmark. So the friend who has filled the form will create a bookmark and will share the bookmark to the another friend who is yet to fill the form. Clear? Yes, sir. Okay. Now this friend A who has filled the form earlier, he filled the form in the month of June. Now in the month of August, he has to again fill the form. There was some mistakes in the form. So what does he do? On his computer, on his browser, he has already shared the bookmark. Yes or no? Yes. He has saved the bookmark. So he will just go on the bookmark and click, and directly this page will open. Yes or no? Yes, sir. So this bookmarking is possible in Get. Is possible in. Yes. It is not possible in Post. Post. Am I understood? Yes, sir. See, even we also bookmark some pages. Like I'll show you over here. Are you able to see the browser? Yes, sir. So you go over Clearly here. okay. You go over here, and if you see over here, no, it does show you some bookmarks. Where are they? See in the history. You see over here history. So if I want to go to a particular page, I can directly go. And I have shared few bookmarks also. How do I search the bookmarks? See over here. Do you see bookmark? Yes, sir. And this is the bookmark I have shared for my website login page. So when I click on this, directly it takes me to this my login page. Clear? So this bookmarking is possible in Get. It is not possible in Post. So they both have their advantages. So what is the advantage of Post? What? It is secure. Secured. And what is the advantage of Get? You can get the bookmark. Bookmarking. But Get is non-secured. Get is. Not secure. So now I'll show you the example. I'll show you a demo of both. I'll show you the demo of both. So now where were we? Yesterday I did some programs for you, no? We had done a program yesterday. Where did I save it? कल वाले program कहाँ? Okay. Where do we save the PHP programs, guys? PHP प्रोग्राम का सेव करने का तरीका क्या है? ये है, देखो इधर, ये है सेव करने का स्ट्रक्चर. PHP के प्रोग्राम को सेव करने का स्ट्रक्चर क्या है? Where to save PHP files? So for PHP, didn't I share that WAMP का setup file? एक वीडियो मैंने किया था ना शेयर आपको. तो वो WAMP का सेटअप फाइल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करेंगे, तो वो पूछता है आपको कौन से ड्राइव पे इंस्टॉल करना है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में. तो मैंने कहाँ इंस्टॉल किया है? मैंने मेरे सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है. तो जो आप ड्राइव दोगे उस ड्राइव पे वो एक फोल्डर बनाएगा. किस नाम से? WAMP. और WAMP के अंदर बहुत सारे फोल्डर होंगे. उसमें एक फोल्डर आपको गौर करना है. कौन सा? कौन सा? www. कौन सा WAMP के अंदर कौन सा फोल्डर पे आपको नजर रखना है? www. तो ये दोनों फोल्डर आपको बने बनाए मिल जाएंगे. एज यू इंस्टॉल WAMP, यू विल गेट दीज टू फोल्डर्स ऑटोमेटिकली बिल्ट इन. आपको बनाने की जरूरत नहीं है. आपको फिर क्या बनाना है? www में जाना है आपको. ये जो है ना रेड पार्ट आपको बनाना है. तो www में जाके क्या करना है आपको?
एक फोल्डर बनाना है आपके प्रोग्राम के नाम से। तो अगर आपको मिला है slip1, आपको क्या मिला है? slip1। तो आप क्या करोगे? फोल्डर बनाओगे किस नाम से? फोल्डर किस नाम? slip1 के नाम से। कौन से फोल्डर में? www फोल्डर में बनाओगे, फोल्डर slip1 के नाम से। समझ में आया? हाँ सर। तो ये जो रेक्टेंगल है ये फोल्डर है, रेक्टेंगल है वो क्या है? फोल्डर है। और उसमें दो फाइल बनाना है, .html और .php। क्या बनाना है? .html और जो आपको नाम देना है वो नाम दे सकते हैं। आपको जो नाम देना है, तो अगर आपको देना है, इसका नाम देना है 1.html और इसका नाम अपने, अगर आप कर रहे हो add two numbers, तो आप दे रहे हो add.php। तो ये दोनों फाइल्स कहाँ स्टोर होंगे? slip1 में। तो समझ में आया कैसे सेव करना है प्रोग्राम्स को, कार्तिक? हाँ सर। हाँ सर। तो सी वैम्प ये आपको बने बनाए मिल जाएगा, www बना बनाए मिल जाएगा। www को ओपन करो, एक फोल्डर बनाओ एप्लीकेशन के नाम से और दोनों फाइल उसमें डाल दो, 1.html और add.php। तो 1.html और add.php का क्या है मालूम है क्या? 1.html वो रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट करेगा और फिर उसका डेटा जाएगा add.php पे और वो रिस्पॉन्स भेजेगा। तो इसके लिए दो फाइल चाहिए, एक रिक्वेस्ट करने वाली, एक रिस्पॉन्स करने वाली। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए दो फाइल लगते हैं हमको। हम नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या कर देंगे, उसको एक में भी क्लब कर देंगे, और वो नेक्स्ट सेमेस्टर में है। अभी तुम इतना ही समझो बस। तो कितने फाइल लगेंगे हमको? दो फाइल। कौन से कौन से? एक .html की और एक .php। तो अभी हम करते हैं 2 नंबर को ऐड करने का, ठीक है? तो लेट्स आई नेविगेट यू ऑल टू देयर, आई नेविगेट यू ऑल टू वेयर आई हैव सेव्ड देम। तो मैं कहाँ जाऊँ पहले? हाँ, अभी पहले ड्राइव बोलो ना, ड्राइव। माय कंप्यूटर में आ गया मैं, अभी कहाँ जाऊँ? सी ड्राइव से कहाँ जाऊँ? वैम से किधर? www। और मैंने आप लोग के बनाया है वेल्डर, आप लोग के लिए बनाया है मैंने एप्लीकेशन Wave1। क्या नाम से बनाया है? Wave1। आ गया Wave1। हाँ। इसको ओपन करूँ तो इसके अंदर क्या होगा? एक PHP फाइल और एक HTML फाइल। क्लियर सो फार? नाउ हाउ टू रन इट, हाउ टू रन इट, आई विल शो यू हाउ टू रन इट। रन करते वक्त गो टू स्टार्ट। आर यू एबल टू सी माई स्टार्ट ऑप्शन? यस सर। क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है? सर नहीं, अभी ब्लैक बॉक्स दिख रहा है। अभी ब्लैक तो गो क्लिक ऑन द विंडोज ऑप्शन एट द बॉटम लेफ्ट एंड सर्च फॉर वैम्प, सर्च फॉर वैम्प एंड इट विल टेल यू, शो यू ऑप्शन कॉल्ड एज स्टार्ट वैम्प सर्वर। क्या दिखेगा ऑप्शन? स्टार्ट वैम्प सर्वर। उस पर क्लिक करेंगे ना तो एक W बनेगा, W वो रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर ग्रीन होगा। तो एक W होगा, वो फर्स्ट इट विल बी रेड, then it will turn to orange and then green. Do you all see that at my task bar? Do you see my task bar नीचे? वो आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोग को आ जाएगा वो, ठीक है? Sir, it is there in the video yesterday. Yeah, correct. And then now I'll show you what is there in 1.html. What is there in 1.html? हमको 2 नंबर एक्सेप्ट करने हैं, तो 2 नंबर एक्सेप्ट का कोड क्या है? ये है ना? तो इसके लिए फॉर्म का नाम क्या है? एक्शन क्या है? आपको कौन सी PHP फाइल को कॉल करना है, कौन सी PHP फाइल को रिक्वेस्ट करना है, कौन सी PHP फाइल है वो? और मेथड क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? इस बार पोस्ट। तो इससे डेटा क्या होगा? सिक्योर जाएगा। क्या जाएगा डेटा? सिक्योर। और 2 नंबर ले लिए। पहला टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? T1। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम? T2। और इनपुट टाइप क्या है? सबमिट है क्या बटन है?
Submit. क्योंकि बटन है जावास्क्रिप्ट में, बटन किस में है? Java. क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ना क्लाइंट टू क्लाइंट है, ये क्लाइंट टू सर्वर है। तो इनपुट टाइप क्या होगा हमेशा? Submit. उसका नाम और उस पे जो लिखा हुआ है कैप्शन ऐड। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. So when I click on the post, it will hide the two numbers and send it to the server. What will it do? Hide the two. You will not able to see the two numbers. It will hide them. तो see, let's run them now. रन करने के लिए क्या करना है? गूगल को ओपन करो और लोकल होस्ट टाइप करो। क्या करो? और एंटर। तो इट विल शो यू ऑल द फोल्डर्स इन योर www फोल्डर। उसमें आई वांट टू गो टू विच फोल्डर? वेव 1। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ दिखाओ। सो क्या एंटर करने का? लोकल होस्ट। क्या एंटर करेंगे आप? लोकल होस्ट। और एंटर मारेंगे तो आपका www फोल्डर में जितने फोल्डर्स रहेंगे वो सब दिखेंगे। तो हमको किस पे जाना है? वेव 1 पे। वेव 1। कितने फाइल दिख रहे हैं इसके अंदर? 3। दो ना। add.php ये तो फोल्डर है। और फोल्डर है। तो किस पे क्लिक करेंगे पहले? 1.html। ये फोल्डर खुल गया। अब दो नंबर्स मुझे ऐड करने हैं, 7 और 8। क्या ऐड करने हैं? 7 और 8। वो उनको हाइड करके भेजेगा सर्वर को और हमको आंसर क्या मिलेगा? 15। Are you able to see the two numbers over here in the URL? No. No, because we are using post. It is securing them. If I use get, if I use okay, what is the code for add.php? ये कोड देख लो add.php का। कार्तिक, हाँ सर। ये कोड है add.php का। तो php कोड आता है हमेशा एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क php और एंड होता है क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट से। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो इसको बोलते हैं php का स्टार्टिंग कोड, इसको बोलते हैं php का एंडिंग कोड। उसके बीच में मैंने मेथड कौन सा यूज किया है? पोस्ट। तो उसके लिए कौन सा एरे यूज करूंगा मैं? $_ कैपिटल के अंदर। और T1 मेरा पहला टेक्स्ट बॉक्स है। T1 क्या है? और T2 क्या है? सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। और दोनों का तो हमेशा वेरिएबल्स को डॉलर से प्रीफिक्स करने का। PHP में ऑलवेज गिव डॉलर बिफोर द वेरिएबल नेम एंड डोंट गिव एनी टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर देने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप करता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल सेटिंग करता है वो। तो ए का टाइप देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का नाम दो। और ऐड करते हुए कैसे देंगे? ऐड करते हुए $A $B एडिशन और आंसर किस में गया? सी में। और उसको डिस्प्ले करने के लिए क्या फंक्शन है? एको फंक्शन। ठीक है। अब मैं मेथड चेंज करता हूं, मैं गेट से पोस्ट से गेट। ये फर्क देखो। अभी मेथड क्या यूज किया मैंने? गेट। What will change in the add.php now? What will change over here? गेट आ जाएगा कैपिटल्स में। डॉलर अंडरस्कोर गेट आ जाएगा ना। इसको सेव किया, इसको सेव किया और वापस फिर रन करता हूं इसको। तो अभी दो नंबर्स मैंने जो डाले हैं ना आपको दिखेंगे वो। तो सी क्लिक किया 1.html पे खुला ये। चलो give me the numbers, give me your numbers, what you all want to add. You give me one, Karthik will give me one. Give me your roll numbers. Roll numbers दो अपने अपने। 121 and what is yours Karthik? 33। तो क्या आंसर आएगा अभी इसका? 154 and the two numbers, what are the two numbers that you will see over here, that you will see in the URL, that you will see in the URL? C क्या हो गया? इसको सेव नहीं किया था क्या? सेव तो किया था, फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अनडिफाइंड T1 तो डिफाइंड है, सेव भी तो किया है मैंने। नॉनसेंस से क्यों कर रहा है ये? Why is it acting funny? Line number 2 it says
ओके चलो ठीक है, हम वापस स्टार्ट से पूरा करते हैं। इसमें आ गए। Are you able to see the browser? Yes, sir. one.html में गए, दो नंबर्स दूंगा मैं 6 और 7 और उस पर ऐड करूंगा। इसे क्यों कर रहा है ये? undefined t1 add.php इंडेक्स t1 नहीं है। क्यों नहीं है इंडेक्स t1? $_get और मेथड गेट यूज हुआ है और सेव हुआ है। इसको सेव एज करते, चलो कहीं ऑटो सेव नहीं हो रहा, तो इसको हम सेव एज करते हैं। one.html सेव, यस रिप्लेस इट, और add.php भी $_get t1 सेव एज करते हैं इसको भी। Yes, and this. Now I have saved both. Let me again go to the start. It shouldn't be doing this. Wave1 1.html 101 102. I don't understand. I don't. Let's change the browser and run, guys. The code is perfectly fine. Let's change the browser. Let's run it in Mozilla. हेलो, ब्राउजर चेंज करते हैं गाइस। ब्राउजर पहले हम रन कर रहे थे क्रोम में ना। हाँ सर। मैं ब्राउजर चेंज कर रहा हूँ अभी। मैं इसको रन कर रहा हूँ मोजिला में। मोजिला में देखते रन करके होता है क्या। पता नहीं वो क्यों ऐसे नाटक कर रहा है। वेव 1 आ गया, किस पे क्लिक करने का? one.html पे दिख रहा है तुमको? one.html। दो नंबर्स बोलो, 121 और 34 33। तो क्या आउटपुट आएगा इसका? 154। और दोनों नंबर हमको दिखेंगे यूआरएल में। दोनों नंबर हमको यहाँ दिखेंगे यूआरएल में। दिख रहा है? दिख रहा है 121? हाँ सर। और दिख रहा है 33 दिख रहा है? हाँ। और तो हम क्या करते हैं, what we tend to do is, what we feel is कि हम लोग क्या करते हैं सिक्योरिटी के लिए, क्या करते हैं सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट टाइप इज पासवर्ड। क्या यूज करते हैं? पासवर्ड। तो हम लोग लिखते हैं कि इनपुट टाइप इज पासवर्ड and we feel कि we have given the security. Now I save this, okay, and now when I run this again, तो मुझे क्या लगता है कि मैंने सिक्योरिटी दे दिया। नंबर्स क्या थे अपने? 121 और 33। तो 121 और 33। तो मुझे क्या लग रहा है कि सिक्योर दे दिया ना मैंने। तो अभी अगर कोई मेरे बाजू में खड़ा है बंदा और वो मेरा लैपटॉप देख रहा है, तो व्हाट डू वी फील कि डेटा इज सिक्योर्ड। देखो क्या मिलने वाला है देख के। तो अगर हम एटीएम में पिन एंटर कर रहे हैं और हमने अपने हाथ से कीपैड छुपाया है और हम अपने नंबर्स एंटर कर रहे and someone is seeing dot on the screen, are we afraid? No, because we have hidden the keyboard. तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स को हाइड कर दिया है, तो वी फील कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। बट जो हैकर होता है ना, हैकर, उसकी नजर क्या होती है मालूम है? यूआरएल पे। क्या होती है? यूआरएल। तो जब वो ऐड पे क्लिक करेगा तो सी ओ ईयर दिख रहा है? हाँ सर। 121 और 33। तो हमने भले ही वो सिक्योरिटी कर दी हो, पर यहां से हम लोग को वो ब्रीच हो जाएगा। इसके लिए गेट इज नॉट फॉर सेंसिटिव डेटा। गेट इज नॉट फॉर sensitive data. Let's run it once again. So now I'll add the numbers. I will add the numbers 2 and 3. What will I add? 2 and 3. So as per my understanding, I am feeling कि secured है। तो आउटपुट क्या आएगा? 5. और डेटा देखो यहाँ दिख रहा है इधर? हाँ सर। क्या दिख रहा है? ये 2 और 3 दिख रहा है। हाँ, तो इसके लिए गेट कभी भी सिक्योरिटी डेटा के लिए मत लो। आया समझ में प्रोग्राम?
कार्तिक हाँ सर। कैसे लिखना है, कैसे सेव करना है, समझ में आया? हाँ सर। अब तुम लोग बाकी अरिथमेटिक ऑपरेशंस करो इसके ऊपर, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अभी आपको करना है मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। कैसे करेंगे? सिंपल, इफ $A ग्रेटर देन $B, $B। तो इको $A इज मैक्स। और इसमें नेक्स्ट लाइन के लिए बी आ रही है, क्या है? BR। उसके अंदर ही देना बी आर को। और एल्स क्या करना? मैंने ब्रैकेट्स नहीं दिया है, इफ के ब्रैकेट्स नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, और कमेंट करने के लिए भी स्लैश है बस। अभी सेव किया इसको, रन कैसे करेंगे इसको? इसको छोड़ो, इस पे रन करेंगे क्रोम पे। तो उस फोल्डर पे नेविगेट करेंगे, ओपन द HTML फाइल, टू नंबर्स I'll enter 7 and 3. 7 and 3, which number is greater? 7। ये क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड ग्रेटर देन, ये इक्वल टू साइन क्या हो गया? ओ ये देखो, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया मैंने सही से, दिख रहा है? हाँ सर। मैंने ब्रैकेट क्लोज राउंड ब्रैकेट से करना था ना, ऐसा। हाँ, वो सेव, ऐसे सर। ऑलवेज सेव इट एंड देन ऑलवेज रिफ्रेश ओवर हियर। तो नंबर्स है 7 और 3। नंबर्स क्या है? 7 और 3। क्या ये क्या हो रहा है अभी? ये बोलता है, और ये मैंने वापस क्रोम में कर लिया। आई डोंट वांट टू ओपन इन क्रोम, आई वांट टू ओपन इन मोज़िला। 1.html किया, शायद क्रोम में कुछ कुकी सेटिंग्स है 7 और 3, तो क्या आया? 7 is max एंड द नंबर्स आर ओवर हियर 7 and 3। तो इसके लिए and 3। डोंट यूज इट फॉर सिक्योर डेटा। क्लियर? Yes sir। चलो प्रैक्टिस सर्च एलिमेंट्री प्रोग्राम्स एंड देन विल सी टुमारो। Yes sir। चलो बाय।